حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے ہم پیچھے، حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے ہم پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ ہمیں بدلنا ہے، ہمیں بدلنا ہے امت کے نونہالوں کا مزاج، ہمیں بدلنا ہے امت کے نونہالوں کا مزاج۔ بن تراشے ہیرے ہمیں اچھے نہیں لگتے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ بتاتے ہیں عزائم مانی کے ایک دن بھی ایسا آئے گا، بتاتے ہیں عزائم مانی کے ایک دن بھی ایسا آئے گا، ہر شاخ پہ بلبل چہکیں گے، ہر شاخ پہ بلبل چہکیں گے، یہ رشک ارم بن جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARS اسلامک نیٹ ورک، جہاں ملتی ہے ایمان کو تازگی، دل کو سکون اور علم کو نئی روشنی۔ اسلامی پروگرام کی ریکارڈنگ یا لائیو کے لیے آج ہی بک کریں۔ نمبر اسکرین پر موجود ہے۔ معزز سامعین کرام اور دائز پر جلوہ فروز معطر علماء کرام و شورائے نظام، آج کی یہ نورانی مجلس تکمیل حفظ قرآن کے تعلق سے سجائی گئی ہے، اور الحمدللہ بہت دیر سے جامعہ حفصہ للبنات کے طلبہ طالبات کا پروگرام تمامی حضرات سماعت فرما رہے تھے، اور تمام بچے بڑے اچھے انداز میں اپنا پروگرام پیش کر رہے تھے۔ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، یقین جانیے مسلمان بھائی کو، یہ آگے کی امید ہے، یہ مستقبل ہے، یہ ہمارے قوم کے عظیم سرمایہ ہے۔ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ پروگرام پیش کر رہے تھے تو ان کی آنکھ ان کے ذہین و فطین ہونے کی چغلیاں کھاتے ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ بچے جو پروگرام پیش کر رہے تھے، ان کے چہرے پر علم کا ایک روشن چراغ منور ہو رہا تھا۔ اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ جامعہ حفصہ للبنات صرف تعلیم کی ایک جگہ نہیں ہے، جامعہ حفصہ للبنات صرف ایک مدرسہ نہیں ہے، بلکہ جامعہ حفصہ للبنات میں بچوں کو پڑھایا بھی جاتا ہے، اور جامعہ حفصہ للبنات میں بچوں کو انسان بھی بنایا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ مدرسہ ہے کوئی میکدہ نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے کوئی میکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ علم کیا ہے؟ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اقرا ہے۔ اقرا کے معنی آتے ہیں پڑھنے کے۔ پتہ چلا کہ اسلام کا جو آغاز ہوا ہے، اسلام کی جو ابتدا ہوئی ہے، وہ تعلیم سے ہوئی ہے، وہ اقرا سے ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے نامساعد حالات میں بھی ایک مدرسہ قائم کیا تھا، اور اس کا نام دار ارقم رکھا تھا۔ اسی دار ارقم کے اندر 40 طلبہ کرام حفظ کرتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اسی مدرسہ، اسی دار ارقم کے طالب علم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دوسرے طالب علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے طالب علم تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی مدرسے کے اندر دین اسلام قبول کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تھے میرے بھائیوں۔ اور جب مکہ آپ
तशरीफ लाए तो मक्का की सरजमीन पर भी एक मदरसा कायम किया और आपने मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली और उसके लिए और उसी मस्जिद पर एक चबूतरा बनाया जिसका नाम आपने सुफ़ा रखा। आज पूरी दुनिया के अंदर जितने मदारिस इस्लामिया हैं, मकातब दीनिया हैं, उन तमाम के तमाम मदारिस इस्लामिया का ताल्लुक उन सब की निस्बत उसी सुफ़ा इस्लामिक पब्लिक स्कूल, उसी सुफ़ा यूनिवर्सिटी और उसी सुफ़ा से जाकर मिलती है जिसको आज से 1450 बरस पहले ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की सरजमीन पर कायम किया था। रिवायत के अंदर आता है, लिखा गया है किताबों के अंदर कि उस सुफ़ा के अंदर तकरीबन 900 तलबा पढ़ते थे, वो सहाबा पढ़ते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मदरसे के सरपरस्त भी थे, उस मदरसे के नाज़िम भी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मदरसे के मोहतमिम भी थे और इससे बढ़कर आप नाज़िम मतलब भी थे। रिवायत के अंदर आता है कि उसी सुफ़ा में लोग आते थे, खजूरों का खोशा डाल देते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा तशरीफ लाए हैं सुफ़ा मदरसे के अंदर और आपने खजूर के खोशे देखे तो उसमें अपनी आसा मुबारक को डाली तो उसके अंदर से चंद खजूरें निकली जो सड़ी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार किया और फरमाया कि क्या वो शख्स इससे बेहतर खजूर नहीं दे सकता था, उसने खराब खजूर दी है, क़यामत के दिन भी उसको ऐसी खजूरें मिलेंगी। ये जामिया हफ्सा लिल बनात का ताल्लुक भी उसी सुफ़ा से है मेरे भाइयों। ये आपके गांव के अंदर ये इदारा है, यकीन जानिए ये दीन फैला रहा है, दीन का काम कर रहा है, दीन की इशाअत के लिए, उसकी तरबीज के लिए ये हाफिज कारी शम्सुल हक साहब सरगर्दा रहते हैं और पूरे इलाके के अंदर इस गांव के अंदर जामिया हफ्सा लिल बनात की रोशनी पहुंच रही है। इन्होंने एक दिया जलाया है, इन्होंने एक चिराग रोशन किया है, इस चिराग की रोशनी हर जहां जानिब फैल रही है और इस मदरसे इस गांव से बच्चे निकल रहे हैं, हाफिज बनकर निकल रहे हैं, बच्चियां हाफिजा बनकर निकल रही हैं। इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है, इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी गांव के अंदर अज़ाब नाज़िल करने का इरादा फरमा लेता है तो फरिश्ते कहते हैं ये अल्लाह तबारक व तआला ठहर जाइए, आपको मालूम है कि उस गांव के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चे कुरान की तिलावत करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने फैसले को बदल देता है, कहता है कि जिस गांव के अंदर मेरे कुरान पढ़ा जा रहा हो, हदीस की तालीम दी जा रही हो, अल्लाह तबारक व तआला उस गांव वाले को अपने अज़ाब से बचा लेता है मेरे भाई को। याद रखिए जितनी तालीम की जरूरत मर्द को है उससे कहीं ज्यादा जरूरत इस वक्त औरतों को है। खवातीन का पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर खवातीन पढ़ी लिखी रहेंगी तो यकीन जानिए वो अपने बच्चों के लिए बेहतरीन मुअल्लिमा साबित हो सकती है। खवातीन पढ़ी लिखी रहेंगी तो वो मुअल्लिमा ही नहीं बल्कि अपने समाज के अंदर इनकलाब ला सकती है। खवातीन अगर पढ़ी लिखी रहेंगी तो वो खाने को इबादत खाना और मैखाने को मस्जिद बना सकती है। खवातीन अगर पढ़ी लिखी रहेगी तो हर वो काम कर सकती है जो इस्लाम चाहता है। अगर खवातीन पढ़ी लिखी रहेगी तो मुआशरे के अंदर इस्लामी निजाम कायम कर सकती है, अपने घर के अंदर इस्लामी निजाम कायम कर सकती है, वो अपने बच्चों की अच्छी मुअल्लिमा बन सकती है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों की नजर जिन चीजों जिनके चेहरों पर सबसे पहले पड़ती है वो माँ का गोद होता है। माँ अगर तालीम याफ्ता होगी तो बच्चे के अच्छे होंगे, माँ अगर तालीम याफ्ता होंगे, तालीम याफ्ता नहीं होगी तो बच्चे बेकार होंगे। इसलिए कहा जाता है कि माँ का गोद बच्चों का पहला मदरसा होता है, माँ का गोद बच्चों का पहला मकतब होता है, माँ का गोद बच्चों का पहली यूनिवर्सिटी होती है और बच्चे माँ के गोद के अंदर सीखते हैं। अगर गांव के अंदर
अंदर किसी को ये शिकायत है कि लड़के नजर उठाकर देखते हैं, गांव के अंदर किसी को शिकायत है कि लड़का गलत काम करता है, तो मैं भगवान के दोहल और डंके की चोट के साथ कह सकता हूँ कि इसका हल किसी मदरसे में नहीं, इसका हल किसी मकतब में नहीं, इसका हल किसी इदारे में नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, बल्कि अपने घर के आईना में देखना होगा। इसलिए ये मुआशरा घर के अंदर बनता है, मुआशरा घर के अंदर बिगड़ता है, मुआशरा माँ के गोद में बनता है और मुआशरा माँ के गोद में गुजरता है। तो ये बात भी बाबांगे दोहल और डंके की चोट के साथ कह सकता हूँ कि इस्लाम जो है बच्चों की तालीम, जबरी तालीम का, इस्लाम बच्चों की जबरी तालीम का कायल है, यानी बच्चों को शुरू ही से उन्हें पढ़ाया जाए, इसलिए मकातिब कायम किए जाते हैं। जब जामिया हफ्सा लिल बनात का भी अपना एक मिशन है, ये भी एक मिशन है और अपने मिशन में ये मदरसा कामयाब होता नजर आ रहा है। आप सब लोग ये अहद करें, ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह जब तक ये मदरसा कायम रहेगा, हम हाफिज शमसुल हक साहब के कदम से कदम और उनके कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे और इस इदारे की आबियारी करेंगे और हर मुश्किल हालात में हम इदारे के लिए छांव का काम, छप्पर का काम करेंगे, साहिबान का काम करेंगे और जहां तक हो सकेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला खुश दिली के साथ हमेशा इस इदारे की मदद करते रहेंगे। यकीन जानिए ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हिफ्ज किए हैं, ये आप सब लोगों की गवाही देंगे। कल कयामत का मंजर होगा और ये सारे बच्चे जब जन्नत के अंदर जाएंगे तो जहन्नम के अंदर भी कुछ लोग होंगे। रिवायत के अंदर आता है कि जहन्नम का छप्पर उठा दिया जाएगा और वो हाफिज कुरान बच्चों को बुलाया जाएगा कि पता इसके अंदर कोई तेरा रिश्तेदार तो नहीं, इसके अंदर कोई तेरे गांव का तो नहीं। मेरे भाइयों कितने खुशनसीब हैं आप लोग कि इस गांव के अंदर एक बच्ची हाफिज बनी है। एक ही बच्ची नहीं, कई बच्ची हाफिजा होगी, एक ही बच्चे नहीं कई बच्चे हाफिज होंगे। यही वो बच्चे हैं कल कयामत के दिन आपकी गवाही देंगे और एक एक को जहन्नम के गड्ढे से निकाल कर जन्नत के अंदर डालेंगे। मेरे भाइयों कितने खुश नसीब हैं आप लोग, कितने खुश मुबारक हैं आप लोग। मैं दिल की अमीर तरीन गहराई से गिरामी कदर हज़रत कारी शमसुल हक साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जंगल के अंदर मंगल करके दिखाया है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस मेहनत को, इस जुद्दोजहद को और इस फिक्र को कामयाब करे और इनका साया इस इदारे पर, इस गाँव वालों पर तादेर कायम फरमाए। इसी जज्बातों पर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। तौफीक इल्ला बिल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद। ARS इस्लामिक नेटवर्क को पसंद करने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और इस जलसे की तमाम वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।